Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss one more important topic, and that topic is related to biots of the law. Dear students, we have already discussed here the magnetic field due to a straight current carrying conductor. Okay, very nice. We have also discussed here magnetic field due to a circular coil at any point on its axis, and I have also find expression for magnetic field due to a circular coil at its center. Okay dear, very okay dear. Now today I will discuss some concepts and numericals related to biots of this law. Okay, very nice. These concepts and numericals are related here with the straight conductor. Okay, they are related with the circular coil, and they are related with the circular coil at its center and circular coil at its any point. Okay, very nice. तो डिस्कस करेंगे यहाँ बेटा आज और एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं आज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कर्व एट इट्स सेंटर। बेटा आज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। पहले स्टार्ट किसे करेंगे यहाँ बेटा? स्टार्ट करेंगे यहाँ एक कॉन्सेप्ट से। दैट कॉन्सेप्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क in which current I is passed. That arc is, we know that is a part of a circle, and we will here find expression for this we will find expression for current through this arc at its center. Okay, very nice. That is also very important when we deal with the numericals. Okay dear students, let us start here. Let us first of all here find magnetic field due to an arc at its center. Okay, देखो बेटा, तो बेटा यहाँ पहला क्वेश्चन जो पहला कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर। ओके, बट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दिस आर्क। देखो बेटा क्या यहाँ ऐसे क्वेश्चन है। मैं यहाँ एक ऐसे बेटा मैंने एक आर्क ले ली और बेटा लेट दिस आर्क हैज ऐसे बेटा मैंने एक आर्क ले ली। लेट दिस आर्क इज दिस इज एक्चुअली द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल. So that is arc, this is conductor. Let in this conductor we pass current I. Okay, very nice. And let it is बेटा इसका सेंटर जो है इस आर्क का सेंटर यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है ना? Let the radius of this arc is R. Okay, very nice. तो बेटा हमको क्या करना है? What we have to find? Dear, let us take here this to be a CD arc. The length of the arc is to be a CD. But we had to find, बेटा we had to find B. B मालूम करना है at O यहाँ. Let this arc is making an angle phi at the center. Okay. बेटा क्या है? Given ये है. हमको मालूम क्या करना है? Given. This is given. What is given बेटा here? It is given that current I is passed through arc CD. Let this arc is making an angle phi at the center, and let R is the radius of this arc. This arc is actually conductor having length CD in which current I is passed. अब हमें बेटा मालूम क्या करना है? हमें यहाँ मालूम करना है कि इस आर्क की वजह से, इस करंट कैरिंग आर्क की वजह से यहाँ इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज BO एट सेंटर मालूम करना है। देखो बेटे किसके बराबर है? ये जबानी इसके बराबर है। अगर आप ये इसके बराबर है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इंटू फाई, ये है। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसके बराबर है। थोड़े से क्या होता है, इससे आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो डेवलप हो जाती है, और आपका ये जो है ना ये डेवलप होता है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बढ़ेगा कि इसको यहाँ थोड़ा डिराइव करेंगे कि कैसे डिराइव होता है। डेरिवेशन इतनी टफ नहीं है बेटा, लिटिल बिट डेरिवेशन है, लेंथी नहीं है, लेकिन बताएंगे कि हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, वी हैव टू यूज योर बायर्स लॉ। ओके, देखो बेटा कैसे ये है। The magnetic field at its center is, that is mu naught is permeability of free space, I is the current through this arc, and phi is the angle made by this arc at the center, and R is radius of this arc in which current I is passed. अभी बेटा डिराइव करेंगे। देखो बेटा डिराइवेशन क्या है, बहुत आसान है इसकी डिराइवेशन। ओके, वेरी नाइस।
तो बेटा क्या करेंगे, क्या बायट्स लॉ का है, वी हैव टू डिवाइड। व्हाट अबाउट बायट्स लॉ? बायट्स लॉ ये कह रहा है कि डिवाइड दिस आर्क इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट एट दिस। और फिर होल के लिए क्या है, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करनी है बस। ओके, वेरी नाइस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, बायट्स लॉ क्या देता है हमको? बायट्स लॉ गिव्स अस a method to find magnetic field at any point but due to a small current element। तो जब स्मॉल करंट एलिमेंट की बात आती है तो हम डिवाइड करेंगे CD को, डिफरेंशिएशन करेंगे CD को इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, और इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहां निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहां से यहां तक तो खुद ब खुद हमारा आंसर आएगा। आंसर तो ये है, लेकिन थोड़ा इससे कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। देखो बेटा कैसे, ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड दिस होल आर्क इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड टेक वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ओके, लेकिन इसमें बेटा करंट क्या मैंने पॉज की, आई करंट। ओके, ये इसका आंसर है, लेकिन कैसे, देखो बेटा क्या है, फाइनल आंसर ये है, लेकिन निकालेंगे कैसे। हमने क्या किया, डिवाइड CD इनटू divide CD length of the arc into very very small elements, into very very small current elements, into very very small elements and take one such element क्या लिखेंगे बेटा, element ideal यहां dl है, dl। ओके, वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स। See dear, and take one such element dl। ये dl मैंने ले लिया बेटा, यहाँ एक dl ले लिया। ओके, वेरी नाइस। तो अगर करंट एलिमेंट की बात है तो आइडियल लिखेंगे यहाँ बेटा। ओके, वेरी नाइस। तो अब इसको, ये हमको पता है कि ये एंगल बेटा कितना है, यहां से यहां तक ये पाई एंगल है। ओके, वेरी नाइस। लेट अस जॉइन दिस विद द सेंटर एंड दिस विद द सेंटर। तो ये क्या बनेगा, ये dl कितनी, यहाँ ये dl क्या बनाएगा बेटा। ओके, यहाँ साफ करेंगे थोड़ा। हाँ, सीरियर देखो बेटा क्या है, ये dl कितना एंगल बनाएगा यहाँ इस सेंटर पर, कितना, वो तो छोटा ही होगा, और इस एंगल को मैं यहां लिखूंगा d phi। The dl arc, the small arc of length dl will form a very small angle at the center, और वो बेटा ये है, देखा आपने, और मैंने रिप्रेजेंट किया इसको d phi से। ओके, तो एक्चुअली ये आइडियल है। जब करंट यहां पास करेंगे आई, तो बेटा इस करंट का नाम आइडियल है, लेकिन खाली लेंथ अगर लेंगे तो dl है, लेंथ dl, एंड दैट dl forms an angle d phi at the center। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आइडियल, बायट्स लॉ क्या कह रहा है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आइडियल एट O, ऐसे लिखेंगे। नाउ स्मॉल db स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बेटा किसे, आइडियल से एट पॉइंट O के बराबर किसके बाहर आएगा बेटा, वो dB लिखेंगे यूजिंग बायट्स लॉ। तो dB आएगा बेटा म्यू नॉट I dl, बेटा यहाँ ये साइन थीटा है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, और बेटा मैंने लिखा यहाँ r स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस। व्हाट इज दिस डियर, now small db due to ideal at point O, that is at center। और ये कितना दूर है बेटा, r है यहां से। देखो बेटा ये किसके बारे, what is this I is current through this ideal or through this CD wire of curvature, having curvature shape। ओके, वेरी नाइस। तो dl is the length of this, ठीक है ना। और बेटा साइन थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन आई dl वेक्टर एंड r वेक्टर, हमेशा की तरह। थीटा किस किस के दरमियान एंगल होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल यहाँ आइडियल है, ऐसे आई क्योंकि आई ऐसे जा रही है, एंड r यहाँ है, r यहाँ, बिकॉज वी हैव टू फाइंड हियर मैग्नेटिक फील्ड, तो r की डायरेक्शन यहाँ। तो बेटा दिस r इज ऑलवेज हियर, ये 90 बनाता है, ये कितना एंगल बनाता है, 90। तो थीटा किसके बारे है यहाँ, 90। क्यों, बिकॉज ये अगर इसका जूम करेंगे तो जूम करके देखेंगे स्ट्रेट लाइन लगेगी, स्ट्रेट लाइन, छोटा एलिमेंट स्ट्रेट। और बेटा ये क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टैंजेंट के साथ क्या एंगल बनाता है, 90। तो आइडियल और r के दरमियान कितना एंगल होगा यहाँ, थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा होगा यहाँ 90 के बराबर, ये थीटा।
ओके तो बेटा सी डियर हियर ओके वेरी नाइस। तो यहां लिखेंगे ऐसी बेटा देयरफॉर डीबी किसके बराबर आएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा के बदले 90 लिखेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर बिकॉज आर एक्ट्स एज योर रेडियस एंड दिस जब जूम करेंगे आइडियल को दैट विल एक्ट एज अ टेंजेंट एंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इट विल हियर एंगल विल बी 90 and we know that radius forms an angle 90 with the tangent. This small element is acts as a tangent. तो थीटा क्या है 90, तो मैंने ले लिया यहाँ साइन 90 डिवाइड बाय बेटा यहाँ क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल एट पॉइंट ओ। तो अब डीबी लिखा है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा 4 बाय आर स्क्वायर, थीटा किसके बराबर है 90 के बराबर है थीटा। तो मैंने लिखा है म्यू नॉट आइडियल साइन 90 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा साइन 90 किसके बराबर होते हैं 1 के बराबर, देयरफॉर मैं लिखूंगा बेटा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 1 के बराबर, तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 लिखो डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके वेरी नाइस। तो देयरफॉर डीबी किसके बराबर आएगा डीबी म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। This is magnetic field due to the small current element at point O. This is magnetic field due to the small current element at point O. But we have to find magnetic field from C to D due to this whole arc at point O. We have to find magnetic field due to this whole arc in which current I is passed, and we have to find magnetic field due to this at point O. बेटा हमको मालूम करना है magnetic field due to this CD in which current I is passed at point O ऊपर मालूम करना है। ओके देखो तो ये आया स्मॉल की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ये इतना मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर ऊपर। लेकिन हमको देखना है कि होल लेंथ से क्या है, सीडी से क्या है। ये लिख लो पहले, इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां। ओके ये साफ करेंगे सीडी नाउ। आप देखो तमाशा बेटे क्या है, देयरफॉर बेटा डीबी लिखेंगे यहां अगेन रिपीट करेंगे म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके देखो बेटा क्या है, नाउ वी नो दैट दिस स्मॉल डी फाई इज वी नो बेटा हमको पता है कि थीटा होती है बराबर एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। किसकी बात है बेटा सेंटर का एंगल जो होता है, अगर कहीं भी यहाँ ऐसे बेटा ये थीटा लेंगे तो ये थीटा या कुछ थीटा यहाँ ये एल लेंगे तो ये किसकी बात है, ये थीटा होता है बराबर एल बाय आर। थीटा होता है बराबर लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द आर्क, ये हमको पता है। लेकिन स्मॉल के लिए क्या है बेटा, स्मॉल के लिए यहाँ डी, ये देखो बेटा ये डी फाई किसके बराबर आएगा, डी फाई आएगा स्मॉल लेंथ क्या है डीएल बाय, लेकिन यहां रेडियस कितना है आर। ओके वेरी नाइस। लेकिन डीएल निकालेंगे क्योंकि इसकी इक्वेशन नंबर है यहां, मैंने एक फर्स्ट लिखो यहां, ये मैंने यहां लिखी। ओके तो अब ये डी फाई, ये स्मॉल डी फाई किसके बराबर है डी फाई इज इक्वल टू डीएल बाय आर। डी फाई किसके बराबर है डीएल बाय आर, तो डीएल बाय आर। लेकिन डीएल निकालना है यहां, डिवाइड 1 करेंगे तो बेटा ऐसे लिखेंगे डीएल 1 और डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई। बेटा किसके बराबर आर डी फाई। इसकी लिखो बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी सेकंड लिखो ना सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, किसके बदले डीएल के बदले। बेटा सब्स्टिट्यूट करो सेकंड इन फर्स्ट, लेकिन किसके बदले करो बेटा डीएल के बदले करो सब्स्टिट्यूट। ओके सब्स्टिट्यूट हियर बेटा, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन किसमें डालो बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट में डालो। तो देयरफॉर बेटा डीबी किसके बराबर आएगा, डीबी कम्स आउट टू बी एज बेटा म्यू नॉट आई, लेकिन डीएल के बदले क्या लिखेंगे आर डी फाई डिवाइडेड बाय बेटा लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके वेरी नाइस। क्या लिखा बेटा मैंने, तो डीबी लिखा है मैंने यहां म्यू नॉट आई, तो डीएल के बाद बेटा मैंने लिखा आर डी फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज मैंने सेकंड को सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या बन गई डीबी म्यू नॉट आइडियल, लेकिन डीएल के बदले बेटा मैंने लिखा आर डी फाई डिवाइडेड में क्या है, डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर। ओके इजी और डिफिकल्ट, नो सॉरी बहुत इजी। तो टोटल ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ओ पर। लेकिन हमें टोटल सीडी से निकालना है, टोटल करो से निकालना है पॉइंट ओ। तो टोटल फील्ड क्या आएगा, टोटल बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द arc CD
at point O here is actually center. O क्या है बेटा? एक्चुअली सेंटर ऑफ द आर्क. वहां क्या होगा ये? तो यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे. ओके ये करेंगे साफ. हाँ सर कर लो साफ. देखो बेटा क्या है, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन डीबी. ओके वेरी नाइस. इज इक्वल टू बेटा यहां भी इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई आर डी फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई बेटा यहां लिखूंगा आर स्क्वायर. ओके वेरी नाइस. सी डियर देखो बेटा क्या है. ओके वेरी नाइस. अब ये लेकिन यहाँ डी फाई में इंटीग्रल है, डी फाई में. तो यहाँ एंगल कितना है? यहाँ अगर स्टार्ट करेंगे ये 0 to फाई है. 0 to यहाँ एंगल 0 है. मान लीजिए कि यहाँ एंगल फाई 0 है. और बेटा यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक फाई है. तो कहाँ इंटीग्रेशन करने की? 0 to फाई. 0 to फाई मान लीजिए कि यहाँ फाई 0 है. और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है? यहाँ से यहाँ तक ये फाई है. सेंटर में कितना एंगल? यहाँ तो 0 to फाई. 0 to फाई करनी इंटीग्रेशन 0 to फाई, क्योंकि इंटीग्रल डी फाई में है. ओके वेरी नाइस. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी क्या आएगी बेटा? ये तो बी के बराबर आएगी. बी इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट बेटा बाहर करेंगे, आई को भी बाहर करेंगे. एक आर देखो बेटा, एक आर और एक आर कैंसिल. तो क्या लिखा यहाँ? क्या आएगा बेटा? 4 पाई और बाहर निकालेंगे आर. तो इंटीग्रेशन किसकी बराबर आएगी? 0 to फाई. लेकिन किसकी बेटा? डी फाई की करेंगे. ओके वेरी नाइस. क्या लिखा मैंने बेटा? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट को बाहर किया, आई को भी बाहर किया, 4 को भी बाहर किया, पाई को भी बाहर किया, और एक आर और आर कैंसिल, तो आर इसको भी बाहर. तो इंटीग्रेशन कहां से 0 to, यहां मैंने मान लिया कि फाई 0 है और यहां फाई, यहां से यहां तक 0 to फाई. 0 to फाई लेकिन किसकी? डी फाई की. किसकी इंटीग्रेशन करनी है? डी फाई. डी फाई को इनको जमा करना है 0 to फाई. ओके ऐसी भी कहेंगे. तो बेटा बताइए डियर फॉर बी किसके बराबर आएगा? बी कम्स आउट टू बी एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई है फाई, तो यहां बेटा लिमिट क्या है? 0 to फाई. ओके वेरी नाइस. तो हो गया हमारा क्वेश्चन. ओके खत्म हमारा क्वेश्चन. ओके वेरी नाइस. तो बेटा बताइए किसके बराबर आएगा? देयरफॉर बेटा बी आएगा बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर. तो यहां बेटा अपर लिमिट माइनस लो, फाई माइनस 0. तो बेटा देयरफॉर बी किसके बराबर आएगा? B comes out to be as mu naught I divided by 4 pi r. Pi minus 0 is 5. तो ये है आंसर. This is the answer. मैंने कहा था ना यही है. ओके वेरी नाइस. क्या? What is the magnetic field due to an arc at its center? कितना है? mu naught I, और सेंटर में कितना एंगल ये आर्क बनाती है? वही 5 divided by 4 pi r. And r is radius of the arc. देखो बेटा यहाँ ऐसे बताएंगे. अगर ये है आर्क ऐसे, इस आर्क में मैंने करंट आई पास की, ठीक है ना, और आर है रेडियस ऑफ द आर्क, और ये सेंटर है, लेट इट मेक्स एन एंगल फाई. तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस आर्क सीडी की वजह से? इस आर्क सीडी की वजह से एट पॉइंट ओ पर क्या होगा बेटा? ये होगा, ये दैट इज बी होगा एट पॉइंट बी पर. कितना? म्यू नॉट आई फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर. जबानी याद रखो. क्या रखो यार? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और यहां क्या है? एंगल फाई. याद रखा? लिख लो बेटा, लिख लो. ओके वेरी नाइस. ये लिख लो. ये यहां डीएल थी. ओके यहाँ ये. ओके ये आई बात समझ में? सब कुछ आया समझ में? हाँ आई बात समझ में? हाँ सर. ओके करेंगे साहब बेटा. ओके देखो बेटे क्या है, ये याद रखो. आप जबानी याद ये रखो. क्या याद रखो? ये इक्वेशन याद. यहाँ एक बार फिर आपकी खातिर, यहाँ ऐसे एक बार फिर आपकी खातिर. सपोज मैं लूंगा यहाँ सी डी आर्क, और बेटे मैं आई करूंगा यहाँ. मान लीजिए कि मैंने यहाँ 4 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर मैंने पास की. 5 एम्पियर यहाँ इसमें पास की. आई 5 एम्पियर. और बेटा मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल आर्क रिलेटेड टू न्यूमेरिकल. तो यहाँ बेटा मान लीजिए कि एंगल बनता है 30, आप 37 बनाते हैं. 37 फाई कितना बनाया हमने? फाई यहां 37 सेंटर पर, और इसका आर है, मान लीजिए कि आर है 10 मीटर. आर हियर इज 10 मीटर and current through this CD is 5 ampere. Okay, this is here, and let this arc makes an angle 37 at its at the center, and R is 10 मीटर. तो बेटा बताइए किसके बराबर आएगा? 37 रेडियंस बनाता है, नॉट डिग्री, रेडियन बनाता है. रेडियंस बनाता है, क्योंकि रेडियन में होना चाहिए, रेडियन बनाता है. ओके वेरी नाइस. बता बेटा ये किसके बराबर आएगा? बताइए
बताओ बी किसके, बी करो फाइंड एट ओ, बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा ड्यू टू सी डी एट ओ, क्या आएगा बताइए जल्दी बताइए। तो बी बेटा सॉल्यूशन ऐसे आएगा सॉल्यूशन, देखो बेटा क्या वी नॉट बी किसके बाद है म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ठीक है ना आर, ये है फॉर्मूला। देयरफॉर बी नॉट क्या लिखेंगे बेटा, म्यू नॉट आई किसके बारे है, आई हियर इज 5 एम्पियर, 5 इनटू 5 कितना है बेटा, 5 है 37। ओके नहीं 37 मत ले लो, ऐसे ऐसे बेटा कुछ ले लो 5, कुछ ऐसे ले लो, मान लीजिए कि यहाँ हमने यहाँ 60 है 60, और मान लीजिए कि 100 तो नहीं 50 ले लो, 50 मान लीजिए कितने रेडियंस, 50 रेडियंस, ओके सॉरी यहाँ मान लीजिए कि 50 रेडियंस, आसान बेटा कैलकुलेट करने के लिए 37 तो ये तो टॉप हो जाएगा, यहाँ सीधे लिखा मैंने 50 रेडियंस, मान लीजिए एंगल कितना बात है 50 रेडियंस, या ये पाई या कुछ और लिखो बेटा पाई/3 रेडियन बनाता है, चलो मान लीजिए कि 50 रेडियंस बनाता है, मान लीजिए कि बेटा 50 रेडियन बनाता है, चलो कितना रेडियंस बनाता है 50 रेडियंस, क्या बनाता है बेटा 50 रेडियंस, क्या बनाता है 50 रेडियंस, चलो यही ले म्यू नॉट इंटू आई क्या लेंगे 5 इंटू 5 कितना लेंगे 50, ये रेडियन में लेना है, रेडियन अगर डिग्री में है तो कन्वर्ट करो रेडियन में, अगर ये डिग्री है तो कन्वर्ट करो रेडियन में, अगर डिग्री है तो कन्वर्ट करो रेडियन में हमेशा होती है, ओके। तो म्यू नॉट इंटू 5 इंटू 50, 4 इंटू पाई कितना है बेटा, ये तो लिखो ऐसी पाई, एंड आर कितने हैं, आर तो 10 है, ठीक है ना, तो आप निकालो इसका आंसर बेटा, ये साफ करेंगे, हाँ सर कर लो साफ, देखो बेटे क्या आएगा ये, ओके वेरी नाइस। अगर क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन इज दिस, देन फाइंड क्या करो मैलूम, फाइंड ये मैलूम करो, तो बेटा ऐसे ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ओके तो क्या आएगा बेटा बताइए, देयरफॉर बी किसके बाद आएगा, बी नॉट दैट इज एट सेंटर, तो म्यू नॉट किसके बाद है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके इंटू 5 कितना है 50, और बेटा यहाँ क्या है आई कितनी है, पहले आई लिखेंगे, आई कितनी है 5, एंड 5 कितना है 50 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये 4 पाई है बेटा यहाँ, इनटू आर कितना है इसका 10 मीटर, ओके 10 0 बेटा कैंसल, 4 बाई कैंसल, तो पता है कितना फील्ड आया, तो ये बेटा 5 और 25, तो बी नॉट किसके बाद आया, बी नॉट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁷, या ऐसी साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बी नॉट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻�6 टेस्ला, ये भी लिख सकते हो आप, इसमें से एक 10 निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/10 वो 10 आएगा 1/10, 2.5 तो यहाँ 10⁻⁻�6 ही है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, हाँ सर कुछ भी नहीं है, हलवा जैसा क्वेश्चन, इजी है ना, इजी, म्यू नॉट आई 5 डिवाइड बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट के बदले 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई के बदले बेटा यहाँ 5, और यहाँ बेटा इसके 5 के बदले कितना ले दो, 5 के बदले ये दे दो 5 50 रेडियन, और 4 भैया रेडियन में होना चाहिए नॉट डिग्रीज, तो इनटू डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10, मैंने लिखा यहाँ सीधे 4 पाई, म्यू नॉट किसके बारे है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 5 इंटू 50, ये 4 पाई है यहाँ इंटू 10, 4 पाई कैंसिल, तो बेटा 5 25 इंटू 10⁻⁷, लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में पहले फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है डेसिमल, तो 2.5 बेटा मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, ये 10⁻⁶ टेस्ला के बराबर आएगा, ओके वेरी नाइस, कर लो ये क्वेश्चन, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ओके वेरी नाइस, तो ये आई बात समझ में कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, ओके वेरी नाइस, जबानी फार्मूला ये याद रखो, फार्मूला तो ये है, एक बार फिर म्यू नॉट आई 5 डिवाइड बाय 4 पाई आर, जबानी याद करो, ओके वेरी, और कुछ भी नहीं करेंगे साथ, हाँ देखो बेटे, now next question here, कुछ some beautiful points here, beautiful concepts here related to Pareto's law, देखो बेटा क्या है, see here, now the first thing here is like this, okay, now second concept here, this was the first concept, arc, अब दूसरा concept क्या है, ये if I am taking two circular arcs, concentric circular arcs at an angle, then what is the angle, then what is the magnetic field due to these current carrying concentric circular arcs at any point, मैं दिखाऊंगा ऐसी नहीं, ऐसी क्या करेंगे, देखो बेटा क्या है, ऐसे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू concentric
due to two concentric circular coils at an angle, पहले थीटा 90 लेंगे, at an angle थीटा is equal to 90। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड एट, कहां पर मैग्नेटिक, एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, क्या बेटा लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू टू कंसेंट्रिक, ये बेटा लिखा है मैंने, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू एट सेंटर, सेंटर पर मालूम करना है, ड्यू टू टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, ड्यू टू टू कंसेंट्रिक, सेंटर का सेम होना चाहिए दो कॉइल्स का, लेकिन these सर्कुलर कॉइल्स और एट एन एंगल थीटा, कितना है सर्कुलर कॉइल्स, कितनी ये सर्कुलर कॉइल्स आपस में कितना एंगल बनाती है, 90, लेकिन सर्कुलर कॉइल्स कंसेंट्रिक है, सेंटर का सेम है, लेकिन हमें मैडम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक देखो बेटा, एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी है, दोनों का सेंटर सेम है, लेकिन इनके दरमियान एंगल कितना है, 90। हमको क्या मैलूम करना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कॉइल्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स, बिकॉज सेंटर हियर इज सेम, बिकॉज दीज आर कॉन्सेंट्रिक। ओके देखो बेटा, दिखाएंगे यहाँ, ये ऐसे दिखाएंगे, देखो बेटा, अगर यहां एक कॉइल ऐसी है और के ये C1 है, इसमें मैंने करंट I पास की, I1 फर्स्ट कॉइल, और दूसरी कॉइल ये है, ठीक है ना, इसमें मैंने करंट क्या पास की, I2, पहले में क्या, दोनों का सेंटर क्या है, सेम, एक कॉइल सर्कुलर करंट कैरी कॉइल क्या पास की करंट I1, दूसरी कॉइल मैंने ले ली सेकंड कॉइल क्या पास की करंट I2, इन दोनों का सेंटर क्या है, सेम, दे आर कॉन्सेंट्रिक, बट एंगल बिटवीन देम, एंगल इन दोनों के दरमियान ये एंगल कितना है, थीटा, ये थीटा इन दोनों के दरमियान 90 है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर मालूम करना है ड्यू टू दीज टू कॉइल्स। कैसे करेंगे, आसान है, बहुत आसान, देखो बेटा क्या, एक क्वेश्चन इज लाइक दिस, देन फाइंड क्या मालूम करना है, देन फाइंड बी एट सेंटर, सी पर मालूम करो, बी एट सेंटर मालूम करो ड्यू टू दीज टू कॉइल्स, ये हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज आवर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, ओके वेरी नाइस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पर मालूम करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ओके देखो बेटे क्या है, क्या करेंगे, तो इसके लिए बेटा ऐसी देखो, इस ऑफ करेंगे, हाँ देखो बेटे क्या करना है, इन दो कॉइल्स की वजह से हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड करना है सेंटर पर। देखो इजी, वेक्टर करेंगे, वेक्टर सम वेक्टर तो यहां पता होनी चाहिए। देखो बेटा क्या है, अब पहली कॉइल, ये पहली फर्स्ट कॉइल, दिस इज फर्स्ट कॉइल यार, देखो बेटे ये पहली वाली कॉइल, इसके लिए करंट है ऐसी, लेकिन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सेंटर में, बेटा ऐसी मैंने कहा ना कि ये ऐसी रखो, राइट हैंड थंब रूल, द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो बी ऐसे आएगा, ऐसी बेटा ऐसे। देखो मैंने कर्वेचर किया फिंगर्स को ऐसे और थंब को इरेक्ट रखा, इफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सॉरी इफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, तो ये अपवर्ड्स है, यहाँ अपवर्ड्स। ओके तो हो गया ये B1 क्योंकि ये करंट I1 है, नहीं I2 है, ये I2 की वजह से ये I2, मैंने I2 मान लिया, I2। अब इस रिंग के लिए क्या है, इस फर्स्ट रिंग के लिए क्या है, ये फर्स्ट रिंग है बेटा, फर्स्ट रिंग तो ऐसे है बेटा, करंट तो ऐसे करंट है, ऐसी बेटा करंट है ना, ऐसी यहां ऐसी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगा। देखो बेटा यहां ऐसी ये ऐसी है, ऐसी कर, देखो बेटा
ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे करंट है, ऐसे 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 मैं रखूंगा, ऐसे ऐसे बेटा ऐसे रखूंगा, ऐसे करंट ऐसे है। यहां अगर देखूंगा करंट ऐसे है, ऐसे करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल ऐसी होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये करंट की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे। ये B1 है, ये B1 है, सॉरी ये B2 है, ये B2। देखो बेटा यहां करंट क्या है? I1, यहां करंट I1 है, यहां करंट क्या है? I2। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या होगा? अपवर्ड्स। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड्स, लेकिन इसके लिए क्या होगा? टुवर्ड्स मी बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल ऐसे। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा दैट विल बी द नेट फील्ड एट सेंटर। ओके, वेरी नाइस। तो व्हाट इज द नेट फील्ड? तो बेटा ये ऐसे लिखेंगे, मैं इसकी कहानी ऐसी लिखूंगा। ये है बेटा क्या है? ये है सेंटर। यहां क्या है बेटा? ये है B2। क्या है बेटा? ये B2 वेक्टर है, यहां इसका B2। और बेटा ये क्या है? यहां क्या है बेटा? ये ओके, ये B1 है। और बेटा ये क्या है? सॉरी दिस इज B2। ये क्या है? यहाँ B1, ये यहाँ B1। इसके लिए क्या होगा? यहाँ बेटा इसके लिए B2, और बेटा इसके लिए होगा यहाँ B1। इसके लिए होगा B1, इसके लिए B1। तो व्हाट इज द नेट सम ऑफ B1 एंड B2 एंड दैट इज गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो ऐसे बेटा ऐसे आएगा, इनका नेट ऐसे आएगा सेंटर पर, ठीक है ना? तो देयरफॉर नेट फील्ड एट सेंटर C क्या आएगा? C से C पर नेट फील्ड क्या आएगा बेटा? बताए। दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ, B1 एंड B2 एट C। देखो बेटा वो क्या आएगा? B वेक्टर नेट आएगा, B वेक्टर नेट B वेक्टर है, B नेट आएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। बहुत आसान। B वेक्टर आएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ B1 प्लस B2, क्योंकि B1 की डायरेक्शन ए स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ए स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये यहाँ एक्ट करता है, ये बेटा यहाँ एक्ट करता है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा B बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो ये B किसके बाद? ये वेक्टर B1 प्लस B2 बाय पैरेललोग्राम। तो अभी B क्या है? क्योंकि ये एंगल इन दोनों के दरमियान थीटा इज 90। कितना है थीटा? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थीटा क्या है इनके दरमियान? 90। ये थीटा 90 है इनके दरमियान, ये थीटा कितना है? 90। तो यहां क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड B क्या लिखेंगे? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस बेटा B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 cos। लेकिन cos थीटा कितना है? B1 और B 90, यहां 90 है। ओके, तो बेटा किसके बाद आएगा ये मैग्नीट्यूड B आएगा बेटा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ट्वाइस B1 B2, लेकिन cos 90 0 के बराबर, बिकॉज cos 90 होता है बेटा 0। तो बेटा ये किसके बाद आएगा? तो बताइए B नेट क्या आएगा? B नेट बताइए, B नेट क्या आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन। तो देयरफॉर बेटा B नेट आएगा, B नेट किसके बाद आएगा? B नेट अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्या है B नेट क्या है? B1, क्योंकि ये टर्म क्या आएगी? 0 इंटू दिस इज 0। तो नेट B क्या आएगा? नेट B क्या आएगा? यहाँ सेंटर पर ए स्क्वायर की वजह से, ए स्क्वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर C पर? वो आएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इफ दीज टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई बात समझ में? बहुत आसान है ना? हाँ आसान। देखो बेटा क्या है, टफ क्वेश्चन, टफ है क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। टफ है नहीं सर, कुछ भी नहीं करेंगे सर, हाँ सर कर लो सर। देखो बेटा अगर यही कॉइल्स बनाते हैं, नाउ सेम टू कॉइल्स, इफ दीज टू कॉइल्स आर एट एनी एंगल, टू कॉइल्स at any angle theta between them, अगर ये होगा ऐसी बेटा, देखो एक कॉइल मैंने ऐसी ले ली, और बेटा दूसरी कॉइल मैंने, अब ये परपेंडिकुलर नहीं, दूसरी कॉइल मैंने ऐसी ले ली सी। तो ये दोनों कॉइल्स बेटा, लेट दिस इज C1 कॉइल एंड दिस इज C2, इन दिस करंट इज I1, और बेटा इसमें मैंने करंट I2 पास की। ओके वेरी नाइस। और इसमें क्या है बेटा? अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? देखो बेटा ऐसे रखो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका दोनों का ये कंसेंट्रिक है, दो बोथ आर कंसेंट बट दे आर एट एन एंगल। देखो बेटा अब इनके दरमियान एंगल क्या है? थीटा। दैट थीटा इज लेस देन 90 और दैट इज नॉट इक्वल टू 90 एट एनी एंगल थीटा। लेट दिस थीटा इज एक्यूट, मैंने यहां थीटा लेस देन 90, तो क्या आएगा बेटा? यहाँ C1 और C2 के दरमियान एंगल क्या है? थीटा। अब इस C1 का क्या है? करंट तो ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसे आएगा, B1 आएगा ऐसे।
ओके, और इसका क्या आएगा, इसका इस कॉइल का कैसे आएगा, परपेंडिकुलर वो है ना करंट ऐसी, इसका आएगा ऐसे B2। और इन दोनों के दरमियान बेटा क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान ये कितना होगा एंगल थीटा। तो बताइए क्या होगा, अरे नेट बी कहां आएगा, नेट बी यहां आएगा इन दोनों का, ये बेटे B1, ये B1 है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस कॉइल, क्योंकि यहां राइट हैंड थंब रूल यूज करो। राइट हैंड थंब रूल इज हियर सेज दैट टेक कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड विल गिव द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो ऐसे आएगा। और इस लूप के लिए क्या आएगा, इस लूप के लिए करंट तो ऐसे है, ऐसे करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन है ऐसे, कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंड फॉर दिस कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा आएगा B1 और B2 के दरमियान, जैसे कि C1 और C2 के दरमियान थीटा है, वही सिमेट्री के हिसाब से आएगा B1 और B2 के दरमियान थीटा एंगल। तो बताइए नेट क्या आएगा, नेट क्या आएगा, नेट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। तो पैरेललोग्राम अगेन बनेगा, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ऐसे। तो बता बेटा नेट क्या आएगा, नेट भी, तो नेट भी ऐसे अगेन लिखेंगे बी वेक्टर, किसी बात आएगा बी वेक्टर, अगेन बी वेक्टर आएगा बेटा बराबर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो आएगा अंडर रूट बेटा क्या आएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 cos थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन B1 एंड B2 एंड B इज देयर नेट। ओके, इजी और डिफिकल्ट। तो देयरफॉर बेटा बी क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 cos थीटा। दिस इज एट एनी एंगल थीटा, इफ दिस थीटा इज 90 देन cos 90 is 0, तो ये आएगा B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, जो मैंने पहला केस किया था। इजी है टा, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी बेटा, बहुत इजी है ना, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, वेरी नाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आया बात समझ में बेटा, बात आई समझ में, हाँ सर आई बात। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सी डियर। ओके, वेरी नाइस। अगर हम ऐसे, नाउ क्वेश्चन नंबर हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके, थर्ड, परहैप्स इट इज थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स कैरिंग करंट्स बट दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, कोप्लानर, concentric and coplanar, not at any angle, थीटा बिटवीन देम इज 0, थीटा बिटवीन देम इज 0। तो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, आसान, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, सी डियर। ओके, वेरी नाइस, सी डियर। लेकिन एक बात है, मैंने एक बात आपको यहाँ कॉइल जो मैंने यहाँ, देखो बेटा एक बात फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ, एक थोड़ी सी बात देखो बेटा, अगर एक कॉइल है ये ऐसे, मान लीजिए कि यहां इसका B1 जो है ना, B1 देखो बेटे क्या है, ये एक कॉइल है और ये मेरे पहले केस के लिए एक कॉइल, न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बेटे अब ये थीटा बिटवीन देम इज 90, ठीक है ना। तो बेटा ये मान लीजिए कि फर्स्ट कॉइल है, इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी है और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ करंट I1 आपने पास की और इसमें करंट I2 पास किया आपने। देखो बेटा, तो मैंने क्या न्यूमेरिकल करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो बेटा, फाइंड इफ करंट I1 इज हियर, बेटा यहां मैंने कुछ करंट लिखी यहाँ। ओके, अगर इन दोनों के दरमियान थीटा कितना है बेटा 90, तो बताइए नेट बी क्या होगा। अगर इसका रेडियस आप और इसको बढ़ाएंगे, लेट R1 इज रेडियस ऑफ दिस, दैट इज दे हैव सेम रेडियस, इसका भी R है रेडियस और इसका भी, दैट इज देयर साइज इज सेम। तो बताइए बी क्या आएगा, नेट बी क्या आएगा सेंटर पर। तो नेट बी आएगा, किसके बाद आएगा नेट बी, तो देखो बेटा क्या है, यहां ये इसके लिए इस फर्स्ट के लिए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, इस कॉइल के लिए बेटा यहां अपने I1 की, तो इसके लिए ये होगा, मान लीजिए सेम करंट इज पासिंग, I1
इज इक्वल टू I2 इज I। यहां भी I आप पास करेंगे I1 में I के बराबर, और I2 भी जो आप I2 करंट है वो भी I के बराबर। सेम करंट सेम रेडियस ईच इज एवरीथिंग। आप क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सी पर निकालो। क्या निकालो, फाइंड। यहां इसी बेटा क्वेश्चन है ये, इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस देन फाइंड। क्या मालूम करो, देन फाइंड B एट C। ये मालूम करो ड्यू टू दीज टू कॉइल्स। अब यहां बेटा I1 के लिए ये I है, ये भी सेम, ये I1 के लिए ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड B1, और बेटा इस कॉइल के लिए ये कॉइल है, इसके लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड B2। तो यहां लिखेंगे ये है B2 और यहां लिखेंगे ये है B1। दोनों की लेंथ की अब द वेक्टर्स शुड बी सेम बिकॉज़ दे हैव सेम, सब कुछ सेम है, करंट भी सेम है, R भी सेम है। R1 यहां ये भी है कि R1 इज इक्वल टू R, दोनों सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 सेम है। तो B1 वेक्टर B2 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट। तो ये क्या आएगा बेटा, ये नेट B है B। तो ये भी किसके बराबर आएगा बता, पूरी तौर बता, ये B किसके बराबर आएगा, क्योंकि ना B1 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 विल बी इक्वल टू B2। देखो बेटा क्या सॉल्यूशन, B नो ना, B किसके बराबर आएगा, B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 cos 90। लेकिन cos 90 इनके दरमियान जो थीटा वो 0 है, तो यहां लिखिए सीधे 0, क्योंकि ये टर्म आएगी 0 आएगी, क्योंकि ये थीटा कितना है 90 है। यहां लिख लो बेटा ट्वाइस B1 B2 cos 90 किसके बराबर 0। तो देयरफॉर B किसके बराबर आएगा, अंडर रूट बेटा लिखेंगे यहां B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 cos 90 बेटा 0 के बराबर। तो ये 0, तो ये टर्म क्या आएगी 0। देयरफॉर B किसके बराबर आएगा, B अंडर रूट बेटा आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, ये आएगा। लेकिन आप क्या इसकी फोर्स लिखो, B1 किसके बराबर आएगा, B1 ये B1 है कॉइल, सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या B1 होता है सेंटर पर, म्यू नॉट I इंटू 2R, म्यू नॉट I इंटू 2R। बेटा देखा है ना बेटा, किसके बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे बेटा नाउ B1 इज इक्वल टू, हमको पता है म्यू नॉट I1 बाई 2R1, लेकिन I1 इज इक्वल टू I1 I2 के बराबर है, यहां I के बराबर, एंड R1 इज इक्वल टू R के बराबर। तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2R, ये है फर्स्ट के लिए। देयरफॉर दिस इज B1 किसके बराबर है, म्यू नॉट I बाई 2R, क्योंकि सेंटर में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाई 2R। ओके देखो बेटा यहां अब B2 निकालो, B2 किसके बराबर आएगा, तो B2 भी ऐसे आएगा, B2 किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R2, लेकिन ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट I बाई 2R, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I एंड I1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो बेटा किसके बराबर, देयरफॉर बेटा यहां देयरफॉर B2 किसके बराबर आएगा, B2 आएगा बराबर यहां म्यू नॉट I बाई 2R। इसका मतलब है कि यहां बेटा B1 किसके बराबर है, B2 के बराबर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू B2 वेक्टर B1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B2। व्हाई, बिकॉज़ दे आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस इज नॉट इक्वल टू, बट मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू B2 किसके बराबर है बेटा, दोनों, ये भी म्यू नॉट I बाई 2R आई और ये भी म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है ना, तो क्या है देयरफॉर यहां लिखिए B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया, तो सबस्टिट्यूट करो B1 और B2 को यहां पर, तो B1 B2 क्या है सेम, तो क्या आएगा बेटा, देयरफॉर फर्स्ट क्या बनेगी, ये साफ करूंगा बेटा यहां लिखिए। तो देयरफॉर बेटा ये साफ करेंगे, हां सर कर लो साफ। देखो बेटा क्या देयरफॉर यहां B किसके बराबर आएगा, B अंडर रूट B1 इज इक्वल टू B2। तो बेटा यहां सेम लिखेंगे, एक ही लिखेंगे B1 स्क्वायर प्लस लिखेंगे B1 स्क्वायर, क्यों, बिकॉज B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, मैंने B2 के बदले भी B1, तो क्या आएगा B आएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, क्या आएगा ट्वाइस B1 स्क्वायर। तो देयरफॉर बेटा B किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 2। तो B1 किसके बराबर है, B1 इसके बराबर है बेटा यहां, अरे है ना B1 किसके बराबर है, म्यू नॉट I बाई 2R का होल स्क्वायर। ये बेटा क्या स्क्वायर और रूट कैंसिल, लेकिन इसके लिए रूट रहेगा, B इज इक्वल टू अंडर रूट 2 तो रहेगा, लेकिन यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या आएगा म्यू नॉट I बाई 2R। ये आ गया आंसर। दिस इज द नेट फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल्स एट सेंटर if they have same current is passed through them and they are of same size, radius same है, and if they are at an right angle with each other, इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, नेट ड्यू टू दिस, ये आएगा। मैंने क्वेश्चन ले लिया, बात आई समझ में।
बेटा टॉप तो नहीं है ना, आसान है, आसान है क्वेश्चन। ओके, करेंगे सॉल्व। वेरी नाइस सी डियर। ओके, वेरी नाइस सी डियर। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ आई एम टेकिंग टू कंसंट्रेट, देखो कॉइल्स, यहां एक कॉइल लूंगा, देखो बेटा एक कॉइल ले ली, एक कॉइल बेटा, दूसरी कॉइल मैंने कंसंट्रेट ले ली ये, एंड कोवलेंट का सेम सेंटर है, इसका और इसका सेंटर सेम है सी। लेट इसमें करंट बेटा पॉज करेंगे I1 और इसमें करंट करेंगे I2, दोनों की सेम डायरेक्शन में, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है, इस दूसरी का रेडियस है मान लीजिए R2। फाइंड इफ क्वेश्चन अगर ये है, फाइंड बी नेट एट एंड पॉइंट सी, क्या मालूम करना है? फाइंड बी नेट एट पॉइंट सी। दीज आर कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक। क्या करोगे आप? सोल्यूशन क्या आएगा बेटा? देखो बहुत आसान, बी नो, क्या पता है आपको? दैट इज B1। B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल एट पॉइंट सी, वो है म्यू नॉट I1 बाई 2R1, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट सेंटर किसी बात है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R, लेकिन पहली कॉइल के लिए 1, करंट B1, R B1, इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखो इसकी? क्या लिखो बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली B2 किसके बराबर आएगा? B2 एट O, दैट सेंटर पर कितना होगा? B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा? म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R2, इसको लिखो सेकंड। देखो बेटा अब नेट भी क्या आएगा? डायरेक्शन ले, देखो बेटा इसकी डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा यहाँ? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स ये लिखते हैं B1 आउटवर्ड्स, और B2 की डायरेक्शन ये B1, यहां लिखो B1 इज हियर, इसका मतलब क्या है? आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स टुवर्ड्स अस। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी B2 की, ये भी B2 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां, ये भी कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब, इट इज आल्सो आउटवर्ड्स। It is the direction of B2 is also, I say that means outwards. That is both vectors B1 and B2 are pointing outwards. So इनका नेट क्या आएगा? सेंटर में ऐड होगा, क्योंकि they are in the same direction. Easy है ना? Easy है ना? लेकिन समझ लो वेक्टर्स आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कि वेक्टर स्टॉप होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। वेक्टर स्टॉप नहीं है, लेकिन क्वेश्चन स्टॉप क्यों होती आपको लगती है? Why question seems to be a stop? Because you lack there in the fundamentals in vectors. वेक्टर्स के जो फंडामेंटल्स वो आपको क्लियर नहीं है, यहां भी काम आता है ना। तो क्या है नेट फील्ड B1 भी यहां, B2 भी यहां, तो नेट भी क्या आएगा? सुपर पोर्शन ऑफ दीज टू, नेट भी आएगा, क्या आएगा? B1 प्लस B2। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएगी, ऐड B नेट एट C एट सेंटर B नेट एट सेंटर क्या आएगा? B1 प्लस B2, तो क्या आएगा बेटा? अरे दे दो ना, म्यू नॉट I1 बटा 2R1 प्लस म्यू नॉट I2 बटा 2R2। अरे हो गया। तो देयरफॉर BC किसके बराबर आएगा बेटा? ये नेट BC है, नेट BC एट सेंटर। देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे BC किसके? नेट फील्ड एट सेंटर क्या आएगा? म्यू नॉट करो कॉमन, 2 म्यू नॉट 2 को कॉमन करो तो इनसाइड क्या आएगा? I1 बाय R1 प्लस I2 बाय R2। This is net field due to these two coils. But when current in both them are in the same direction. अगर आप करंट चेंज करेंगे एक में तो क्या आएगा? यही करेंगे ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालेंगे। ये लिख लो क्या है? म्यू नॉट बाई 2 कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी, तो अंदर क्या रहा? I1 बाई R1 प्लस I2 बाई R2। ओके, हो गया। अब इसी में डायरेक्शन, इस कॉइल की डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसकी या इसकी चेंज करेंगे तो क्या आएगा? तो सबट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक का ऊपर और दूसरी का यहाँ,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना वेक्टर सम। ओके देखो बेटा क्या करेंगे, लिखो एक और क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आई बात? देखो बेटा मैं रिपीट करूंगा। ये कॉइल है, इसमें करंट I1 और इसका R1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक और कॉइल मैंने ले ली कंसंट्रेटेड टू दिस एंड कोप्लानर टू दिस, और इसमें I2 और इसका रेडियस R2। तो पता है सेंटर में इसकी वजह से क्या फील्ड होगा, इसकी वजह से B1 होगा म्यू नॉट I1/2R1। और बेटा इस कॉइल की वजह से सेंटर में क्या होगा, सिमिलरली म्यू नॉट I2/2R2। सेंटर के लिए एक्सप्रेशन है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो नेट क्या होगा, देखो बेटा डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ current is along the direction of the curvature of the fingers and thumb gives the magnetic field। तो पहले के लिए thumb outwards, तो thumb मैंने लिखा outwards, और दूसरे के लिए भी बेटा क्या thumb outwards, क्योंकि curvature of the fingers current और thumb outwards, दूसरे के लिए outwards। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट भी क्या आएगा B1 प्लस B2 एट सेंटर, दोनों जमा हो जाएगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। B1 म्यू नॉट I1/2R1 तो प्लस म्यू नॉट I2/2R2, तो दोनों म्यू नॉट 2 क्या यहाँ कॉमन I1/R1 प्लस I2/R2 हो गया हमारा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगर इसी में डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालेंगे। देखो बेटे क्या है, अगर क्या करेंगे चेंज, अगर इसमें डायरेक्शन आप चेंज करेंगे। देखो बेटे क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ ये 5th है। ओके वेरी नाइस। आप चेंज करेंगे डायरेक्शन। देखो बेटे क्या यही लेंगे, ऐसी कॉइल, ऐसी एक बार फिर ले लो कॉइल, ये कॉइल, एक कॉइल, ये दूसरी कॉइल, इसमें बेटा I1 ऐसी I1, और बेटा इसका रेडियस क्या है R1, ये सेंटर है R1, इसका रेडियस है, दूसरे का रेडियस क्या है R2, और इसमें बेटा करंट क्या है, आप रिवर्स में यहाँ करंट करो, रिवर्स में इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, लेकिन इसकी डायरेक्शन करंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट फील्ड निकालो, फाइंड बी नेट एट कहां पर, एट O सेंटर पर निकालो। क्या करोगे आप, आसान है ये भी क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, अब यहां पहले बताओ B1 ड्यू टू फर्स्ट कॉइल क्या आएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2R1। इसकी वजह से यहां मैंने, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड्स। इसकी लिखो बेटा यहाँ फर्स्ट आउटवर्ड्स है, क्यों ऐसे ही कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, तो आउटवर्ड्स लिखा मैंने। बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस से लिखते हैं आउटवर्ड्स, उस सर्कल में आउटवर्ड्स इसे डिनोट करते हैं ऐसे आउटवर्ड्स टुवर्ड्स अस। आप किसी ने करेंगे फर्स्ट की, सिमिलरली B2 की क्या आएगी, B2 किसके वाला आएगा, B2 द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल एट सेंटर, लेकिन डायरेक्शन करंट आप रिवर्स में। देखो बेटे क्या है, म्यू नॉट I2 सेम आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, क्या है लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट है, इसकी सेकंड लिखो। लेकिन आप डायरेक्शन क्या है इसकी, देखो बेटा आप ऐसे हाथ रखो, कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट देगा, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, वो इस वक्त इनवर्स होगा। क्या होगा, इनवर्स। अरे आउटवर्ड्स ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए आउटवर्ड्स था बेटे, इसे जो क्वेश्चन मैंने लिखा आउटवर्ड्स डार्ट से लिखते हैं, इस पे डार्ट लिखना है, क्रॉस नहीं। जो इसे क्वेश्चन दिखाया था मैंने क्रॉस लिखा था, जब क्रॉस लिखा था ना मैंने को, लेकिन नहीं बेटे इसमें डॉट से लिखते हैं आउटवर्ड्स, डॉट से लिखते हैं आउटवर्ड्स, क्रॉस से लिखते हैं बेटे इनवर्ड्स। गलती हो गई पहले क्वेश्चन में, रेक्टिफाई करना। जो मेरे क्वेश्चन दिखाया ना आपको, जो भी पहले क्वेश्चन दिखाया था ये वाला बेटा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ करंट है इसी करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स इसे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से। मेरी गलती हो गई, रेक्टिफाई करो, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ ये क्या है, देखो यहाँ मुझे ये आउटवर्ड्स ऐसे नहीं लिखते, आउटवर्ड्स किसे लिखते हैं, आउटवर्ड्स तो बेटा डॉट से लिखते हैं, सॉरी। और ये किसे लिखते हैं, क्रॉस से इनवर्स लिखते हैं, रेक्टिफाई करना। क्रॉस से बेटा क्या लिखते हैं, इनवर्स, क्रॉस से क्या लिखते हैं, इनवर्स, सॉरी। यहाँ ये डायरेक्शन क्या है, यहाँ इनवर्स, लेकिन ये क्या है, ये पहले क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई, रेक्टिफाई करना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ रेक्टिफाई किया ना। ये आउटवर्ड्स है बेटे, ये क्या है, क्रॉस क्या है, इनवर्स। ओके तो ये क्या डायरेक्शन आएगी बेटे, इसकी डायरेक्शन इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन इसकी आएगी इसकी आएगी इनवर्स, लेकिन इसकी क्या आएगी बेटे, इसकी आउटवर्ड्स। इसकी क्या आएगी बेटे, इनवर्स, लेकिन इसकी क्या आएगी, आउटवर्ड्स। ओके तो अगर आउटवर्ड्स आप पॉजिटिव लोगे और इनवर्स लोगे नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा बताएं, क्या आएगा यहाँ, क्या आएगा यहाँ बेटा बताइए। तो देयरफॉर बेटा बी नेट क्या आएगा, बी नेट आएगा B1 ये पॉजिटिव है क्योंकि ये आउटवर्ड्स है, ये हमने पॉजिटिव ले लिया यहाँ, लेकिन इनवर्स क्या ले लिया, नेगेटिव, तो माइनस B2 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1/2R1
माइनस म्यू नॉट I2/2R2। ओके वेरी नाइस। तो बी नेट किसके बराबर आएगा? बी नेट बेटा, बी नेट आएगा यहाँ म्यू नॉट बाई 2, लेकिन यहाँ आएगा I1R1 माइनस I2R2। आ गया ना रिवर्स पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का सिर्फ एक ही गलती हुई थी, वो मैंने जो है ना डायरेक्शन तो सेम थी, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन एक गलती मैंने की कि ये मैंने यहाँ इसको क्रॉस से दिखाया, क्रॉस से नहीं डॉट से दिखा रहा हूँ, तो इतनी गलती, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना। यहाँ डॉट से क्या लिखते हैं? आउटवर्ड्स और क्रॉस इनवर्ड्स लिखते हैं। ठीक है ना। डॉट से आउटवर्ड्स लिखते हैं और क्रॉस इनवर्ड्स लिखते हैं। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्रॉस निगेट किया था क्या बेटा? मैंने क्रॉस लिखा था आउटवर्ड्स, लेकिन वहां थोड़ा रेक्टिफाई करना, बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम है। कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। आई बात समझ में? हाँ सर, यहाँ क्या है? नेगेटिव। अगर इसी में बेटा एंटी क्लॉकवाइज होती और इसमें क्लॉकवाइज होती तो ये क्या, ये माइनस आता तो ये प्लस। आसान है ना? हाँ सर, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। ओके वेरी नाइस। ओके डियर, एक बार फिर कहूंगा, अगर कहीं डॉट हो, एक बार फिर, क्योंकि पहले में थोड़ी गलती होगी। B1 क्या है? आउटवर्ड्स। अगर कहीं ऐसे हो, इसका मतलब है B इज इनवर्स। याद रखो, आउटवर्ड्स मतलब ऐसे और इनवर्स ऐसे। ओके, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके वेरी नाइस। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे बेटे यहां। देखो बेटे क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अगर बेटा मैं ऐसे एक कॉइल लूंगा, अब करंट नहीं, मैंने कहा कि क्यू यहां इसमें चल रही है, क्यू यहां बेटा इस ऑर्बिट में सर्कल कर रही है, क्यू चार्ज इसमें मूव कर रही है, और मान लीजिए कि बेटा इसका इस ऑर्बिट का रेडियस r है, और मान लीजिए कि इसको एक चक्कर करने में पूरा टाइम t लगता है, तो दैट इज टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है ना। क्या लिखा मैंने? Q इज चार्ज दैट इज मूविंग थ्रू दिस। इसको एक चक्कर लगने में कितना टाइम लगता है? T, कैपिटल T, एक चक्कर लगाने में टाइम पीरियड। और न्यू क्या है? व्हाट इज न्यू? न्यू इज इट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी रोटेशंस ये करेगा, तो इस चार्ज की ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रोटेशंस बटा टाइम, और नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, वो भी ठीक है। ठीक है, देखो बेटा क्या लिखा। फाइंड बी एट सेंटर। फाइंड बी एट सेंटर। अगर ये है, क्या है? ये Q इज चार्ज मूविंग एंड T इज टाइम पीरियड। T क्या है? T बेटा यहां लिखेंगे, T इज टाइम पीरियड to complete one full rotation, and new क्या है? frequency। then find क्या मालूम करो? then if अगर ये है, ये डॉट है, then find magnetic field at center। ओ यहां पर करो मैग्नेटिक फील्ड मोनो। क्या आएगा बेटा? देखो आंसर इस क्वेश्चन का, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। वी नो, देखो बेटा क्या है। पहले वी नो बी क्या होती है? बी इज इक्वल टू बी एट ओ सेंटर होती है म्यू नॉट I/2R। क्या होती है? लेकिन आई हमें पता है हमें क्यों दिया गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ बेटा? आई निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको पता है कि यहाँ क्यों दिया गया, तो आई किसके बराबर आएगा? Q/T। एंड फॉर वन रोटेशन हम लिखेंगे कैपिटल T। Q/T आई होता है चार्ज बटा टाइम। ठीक है ना। लेकिन बेटा 1/T किसके होता है? 1/T यहाँ लिखेंगे ऐसी फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी होती है 1/T। देयरफॉर बेटा क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू लिखेंगे Q जर बी 1/T, वो भी हो ना, Q1 जर Q, T1 जर T, तो Q/T यही है। लेकिन 1/T किसके बराबर? यहाँ लिखेंगे Q, लेकिन 1/T होती है बराबर न्यू के बराबर। देयरफॉर I किसके बराबर आई? Q इंटू न्यू इज फ्रीक्वेंसी। बता देयरफॉर बेटा किसके बराबर आएगा? मैग्नेटिक। देयरफॉर B नॉट कम्स आउट टू बी एज म्यू नॉट I के बदले क्या लिखेंगे? चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2R। हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। टफ है क्वेश्चन। क्या लिखा? अगर ये डाटा है इन टर्म्स ऑफ क्या निकलेगा? ये
म्यू नॉट क्यू न्यू बाई टी। अगर इन टर्म्स ऑफ बेटा टी निकालोगे तो क्यू बाई टी लिखना है, बिकॉज 1/t इज फ्रीक्वेंसी। ये है आंसर। इजी है, इजी है ना, बहुत इजी। बात आई समझ में? कुछ भी नहीं है। आई किसके बराबर? क्यू बटा टोटल टाइम, लेकिन बट 1/t किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी। आई किसके बराबर आएगी? क्यू जरबी 1/t होगा ना, क्यू बाई टी। लेकिन 1/t किसके बराबर होता है? न्यू। क्यू जरबी 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर। आई किसके बराबर? क्यू इंटू वी। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट म्यू नॉट आई के बदले लिखो क्यू वी डिवाइडेड बाई 2r। तो ये आंसर खत्म, क्वेश्चन कुछ भी नहीं। अब इलेक्ट्रॉन की बात, क्योंकि ये होता है अक्सर किसमें? ये होता है एटॉमिक फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स में ऐसी क्वेश्चंस आती हैं, हाउ टू फाइंड करंट। देखो बेटे क्या है, देखो सीरियर, देखो जिगर, देखो बेटे क्या, अगर ऐसे ही एक शेल है यहां बेटा, इस शेल में क्या चल रहा है बेटा? इस शेल में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू, ठीक है ना। और इसका रेडियस का ऑर्बिट क्या है? आर। इफ अगर क्वेश्चन ये है, फाइंड बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एट द सेंटर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जब ये सर्कल करेगा इलेक्ट्रॉन? एट किस पर? एट द सेंटर। फाइंड। क्वेश्चन आंसर क्या है? बिल्कुल इजी बेटा। वी नो, क्या पता है? वी नो क्या पता है आपको बेटा? बताइए। दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना, ये हमको पता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r एट द सेंटर। लेकिन बेटा हमको पता है, क्या पता है? अभी मैंने निकाला। आई किसकी बराबर होती है? क्यू बाई टी। लेकिन क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1/t, e बाई टी है ना। Therefore I किसके बाद आएगा? E into 1/t, क्योंकि E1 are E and E1 are E divided by T, वही है ना। बट 1/t होती है फ्रीक्वेंसी के बराबर। Therefore बेटा I किसके बाद आएगी? I E into 1/t के बदले न्यू लिखो। तो देखो बेटा ये किसके बाद? B किसके बाद आएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I के बदले क्या लिखो? E न्यू डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ 2r। तो खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन। ओके, टफ कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस। उतार लो ये बेटा, ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चलते हैं ना तो ये एक करंट लूप बनता है। क्या बनता है? करंट लूप। एंड इट एक्ट्स एज ए करंट सर्कुलर लूप। और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन आई किसके बराबर है? क्यू बाई 2। लेकिन क्यू क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E बाई 2। कितना टाइम लगता है एक चक्कर को? कैपिटल टी। आई इज इक्वल टू E इंटू 1/t लिखेंगे, क्योंकि E1 आर E बाई टी। बट 1/t होती है फ्रीक्वेंसी दैट इज हाउ मेनी रोटेशंस इट कंप्लीट्स इन 1 सेकंड। तो 1/t इज इक्वल टू न्यू। तो आई किसके बराबर आएगा? E इंटू न्यू। तो देयरफॉर बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई के बदले लिखेंगे EV divided by 2r. This is a magnetic field at the center of this circular current loop. Because when an electron is revolving around the nucleus, this loop acts as a current loop. So electron when revolving in a circle, that loop acts as a current loop. और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर में? न्यूक्लियस में कितना होता है? अगर न्यूक्लियस में मानेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? कितना होता है न्यूक्लियस में? म्यू नॉट E न्यू डिवाइडेड बाय 2r. ओके, वेरी नाइस. Okay, see here. Next question here. Okay, very nice. See here. अब स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से बेटा करेंगे क्वेश्चन। यहां देखो बेटा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। नाउ स्ट्रेट कंडक्टर थोड़ा समझ लो बेटा, कुछ भी नहीं है ना, आसान है, सब कुछ आसान है। देखो बेटा क्या है, अगर मैं यहां एक कंडक्टर लूंगा, लेकिन देखूंगा टाइम कितना हुआ। ओके, देखो बेटे क्या है, अगर मैं एक कंडक्टर ऐसे लूंगा, एक कंडक्टर मैंने ले लिया I1, इसमें करंट ये है, या एक करंट बेटे इसमें करंट I1, ठीक है ना, और इसमें करंट क्या है मेरी I2, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट दोनों की इनफाइनाइट लेंथ है। अब क्या करना है बेटा, एट एनी पॉइंट सपोज बेटा ये यहां इन दोनों के दरमियान D है, D की दो, दे आर एट ए डिस्टेंस D।
अगर ये पहले मैं ये x की दूरी पर है, x की दूरी पर है, तो ये यहाँ की दूरी यहां से यहां तक कितना है? अगर कोई पॉइंट P x की दूरी पर यहाँ, तो ये कितनी दूरी पर होगा? यहाँ d माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के दरमियान? d। अगर कोई पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड मैलूम करना हो ड्यू टू दीज टू कंडक्टर्स, अगर ये x की दूरी पर है, अगर ये d माइनस एक्स की दूरी पर है, तो पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बट व्हेन करंट इन बोथ इज इन द सेम डायरेक्शन। इफ अगर ये क्वेश्चन है, फाइंड B एट पॉइंट P पर निकालो मैग्नेटिक फील्ड, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? वी नो दैट बेटा, अगर कोई कंडक्टर है, कोई पॉइंट P है यहाँ, अगर ये P R की दूरी पर अगर यहाँ I है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P किसको होता है? म्यू नॉट I बाई 2R, जबानी याद है, 2 पाई R, सॉरी, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I बाई, ये जबानी याद रखो, ये जबानी याद रखो। इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है? म्यू नॉट I बाई म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई, यहां से यहां तक कितनी दूरी है? वो R है। ओके, आप देखो बेटा, यहां आसान काम है, देखो बेटा, अब क्या है यहाँ? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट B1 क्या आएगा? म्यू नॉट, कितना दूर है ये पॉइंट P पर? P पर कितना? फर्स्ट की वजह से एट पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक होगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R1। लेकिन R1 कितनी दूरी पर है? x की दूरी पर है, इसको फर्स्ट लिखो। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड? देखो बेटा, यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर में थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट मैग्नेटिक लूप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या आएगा? ये अगर ऐसी लूप होगा, लूप, ये लूप देखो बेटा, ये यहाँ ले लेंगे ऐसी, देखो करंट ऐसी, लूप तो यहाँ है, ये करंट यहाँ ऐसी, यहाँ ऐसी। बेटा जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट देगा थंब, तो ये लूप क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या करो, यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर ये आउटवर्ड्स होगा, बी आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स जिस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा? ये आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स बी। यहां बी क्या होगा? आउटवर्ड्स। किस पर? आपको बात आई समझ? क्यों ऐसे बेटा? थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लूप्स। यहां क्या डायरेक्शन होगी? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहां टैंजेंट डालो, ये टैंजेंट क्या आएगा? आउटवर्ड्स। ये आउटवर्ड्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आउटवर्ड्स इसी लिखते हैं। ये फील्ड क्या आएगा? B1 यहां, इसकी वजह से I1 की वजह से P पर फील्ड क्या आएगा? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स लिखा मैंने। आप किसी निकालेंगे नाउ, किसे? B2 से क्या आएगा? B2 से बताए, B2 से क्या आएगा? इसकी वजह से म्यू नॉट, सीधे लिखो ऐसे, I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। लेकिन यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस? क्योंकि इन दोनों के दरमियान d डिस्टेंस है, लेकिन यहां से यहां तक कितना होगा? अगर यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक d माइनस एक्स। तो यहां लिखो d माइनस एक्स, क्या लिखो? इसकी लिखो सेकंड। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? देखो बेटा, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यहाँ ऐसी ऐसी। मैंने थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ये तो क्या आएगा बेटा? यहाँ ये तो यहाँ इनवर्स आएगा, इसकी वजह से ये इनवर्स, तो क्रासी लिखते हैं, क्रासी। तो B2 इज इनवर्स, तो B2 क्या लिखेंगे यहां बेटा? B2 हियर इज, ये क्रासी लिखते हैं, इनवर्स। क्या है बेटा? इनवर्स। B2 इज इनवर्स। तो ये क्या? अगर इसको पॉजिटिव, आपको इसको क्या मान लो बेटा? पॉजिटिव। अगर इसको नेगेटिव मान लो, ये तो मानने की बात है, इसको पॉजिटिव मान लो या इसको, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव माना। आउटवर्ड्स को क्या मान लो? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड्स को मैंने यहाँ इनवर्स को, डाउनवर्ड्स नॉट आउटवर्ड्स को पॉजिटिव, और इनवर्स को क्या माने? नेगेटिव। तो नेट फील्ड क्या आएगा? नेट फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द टू। तो नेट फील्ड क्या आएगा? नेट फील्ड एट, कहां पर बेटा? एट पॉइंट P पर क्या आएगा? एट पॉइंट P पर, तो बेटा ये आएगा B इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बताइए। B1 प्लस आएगा, लेकिन ये माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि B1 इज पॉजिटिव आउटवर्ड्स एंड B2 इज नेगेटिव क्योंकि इनवर्स। तो ये आएगा बेटा यहाँ B1 कितना है? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x माइनस B2 कितना आएगा? म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d माइनस x। ओके, वेरी नाइस। आई बात समझ में? इजी है ना बेटा? बहुत इजी। क्यों? ये पॉजिटिव मान लिया और ये नेगेटिव मान लिया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वेक्टर सम लेना होता है नेट फील्ड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो पर बेटा B किसके बाद आएगा? B आएगा बराबर यहाँ क्या? म्यू नॉट 2 पाई कॉमन कर लो, यहाँ क्या? I1 बाई एक्स माइनस बेटा यहाँ I2 बाई d माइनस एक्स। दिस इज नेट फील्ड एट पॉइंट P। ओके, एक और एग्जाम। आप अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, आप इनमें क्या करंट लेंगे? अपोजिट डायरेक्शन, तो देखेंगे क्या आएगा। ओके, आई बात समझ में?
बेटा देखो, आप यही क्वेश्चन, लेकिन आप करंट रिवर्स करेंगे, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। देखो बेटा, देखो क्या सी डियर, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या करेंगे आप, यही क्वेश्चन लेंगे, यही क्वेश्चन लेकिन करंट रिवर्स करेंगे। आखिरी क्वेश्चन आज के इस सेशन का, शायद ये 7वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। तो देखो बेटे क्या है, मैं ऐसे ही लूंगा, ये मैंने करंट I1 पास की, ओके वेरी नाइस, ये इनफाइनाइट लेंगे, ओके मैंने बेटा ये ले लिया, लेकिन अब मैंने रिवर्स करंट यहाँ बेटा ये है I2, यही I1, यही I1, और बेटा ये क्या है I2। अब किसमें मैंने करंट रिवर्स की, I1 में मैंने करंट रिवर्स किया, इसी में रिवर्स करो, I2 में रिवर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैंने रिवर्स करंट की, लेकिन इसमें क्या I1 में सेम रखी, I1 में मैंने सेम रखी, लेकिन किसमें रिवर्स किया I2। आपको दिया नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ सेम केस, एनी पॉइंट P व्हिच इज एट ए डिस्टेंस x, कहां से x, फ्रॉम फर्स्ट कंडक्टर, इसकी भी लेंथ इनफाइनाइट है, दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है, ओके। एंड d इज व्हाट, d इज दैट, d इज डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से अगर यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक कितना होगा, d माइनस x। क्यों, यहां से यहां तक d है, अगर यहां से पॉइंट P फर्स्ट कंडक्टर से x की दूरी पर है, तो बताइए P पॉइंट सेकंड कंडक्टर से कितनी दूरी पर होगा, d माइनस x। अब क्या निकालना है, फाइंड, क्या करो, फाइंड B नेट, कहां पर B नेट, एट पॉइंट P, ये निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन इसका देखो बेटा, हमको पता है, मैंने एक बार फिर कहूंगा, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर में आय आपने की है, और ये अगर यहाँ पॉइंट P पर आपको निकालना, अगर ये कितना दूरी पर है, R की दूरी पर, तो पता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना होता है, म्यू नॉट I/2 जो हमने बैट सप्ला में किया था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ये है एक्सप्रेशन। अब सीधे यहां लगा दो, लेकिन यहाँ वेक्टर सम का अकाउंट लेना है, ओके वेरी नाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो बेटा यहाँ ऐसा करेंगे, बताइए क्या, ओके ओके डियर। नाउ B1 से B1 दैट इज ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर एट पॉइंट P, कितना होगा, वो बेटा होगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है x, ओके वेरी नाइस। तो अब देखना है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड से आउटवर्ड मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन देखना है। देखो बेटा, अगर करंट ऐसी जा रही है तो ये ऐसे है लूप, देखो बेटा लूप तो ऐसे है ना, लूप तो ऐसी है, यहाँ करंट बेटा क्योंकि अपवर्ड से डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द अपवर्ड डायरेक्शन करंट, तो ये क्या देगा, कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आउटवर्ड्स होगा, तो बी फील्ड क्या होगा, यहाँ ये आउटवर्ड्स होगा, यहाँ ये होगा फील्ड B1 आउटवर्ड्स, क्या होगा बेटा, B1 क्या होगा, आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स किसे लिखते हैं, डॉट से, और डॉट किसमें रखते हैं, सर्कल में। ये किसकी डायरेक्शन, आउटवर्ड्स, यहाँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी वजह से पॉइंट P पर यहाँ डाउट, यहाँ आउटवर्ड्स, यहाँ बेटा यहाँ है, किसकी वजह से, B1 की डायरेक्शन, B1 ड्यू टू दिस, ये आउटवर्ड्स है B पर। अब इसकी वजह से देखो, नो बेटा B2 किसके बताएगा, B2 सेम म्यू नॉट I2, लेकिन डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड यहाँ डिस्टेंस कितने हैं, 2 पाई, पहले 2 पाई लिखो बेटा, 2 पाई d माइनस x, ओके वेरी नाइस। इसकी इक्वेशन लिखो सेकंड, लेकिन डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। देखो बेटा इसके लिए क्या है, ये तो डाउनवर्ड से करंट, तो लूप क्या आएगा, क्लॉकवाइज, लूप तो बेटा ऐसे आएगा, यहाँ लूप तो यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है ना, यहाँ बेटा ऐसे आएगा, लूप ऐसे आएगा, ऐसे, यह क्लॉकवाइज क्या है बेटा, यहां तो एंटी क्लॉकवाइज था, अगर हम टॉप में देखेंगे, अगर इसको टॉप में देखेंगे देखो तो ये क्लॉकवाइज है, देखो बेटा ये क्लॉकवाइज है, तो यहां क्या आएगा, इस पॉइंट P पर यहां क्या आएगा, लेकिन यहां देखना है, हमें यहां देखना है, अरे यहां भी आउटवर्ड्स आएगा, ओके यहां देखना है, यहां पॉइंट P है, यहां देखना है, यहाँ इसका क्या आएगा, यहाँ बेटा इसका आउटवर्ड्स, यहाँ भी इसका आउटवर्ड्स आएगा, दोनों का आउटवर्ड्स, ये भी बेटा यहाँ क्या आएगा, आउटवर्ड दोनों आउटवर्ड्स, लेकिन पहले में एक इनवर्स आता था, पहले में इनवर्स, लेकिन इसके लिए आउटवर्ड्स क्यों, देखो बेटा ये ऐसे है, ऐसे देखो बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे डाउनवर्ड्स करंट है, तो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स ऐसे है, अगर इस पॉइंट पर देखो तो ये आउटवर्ड्स, तो B2 भी यहाँ क्या है बेटा, यहाँ B2 भी आउटवर्ड्स। देखो बेटा ये B2B क्या आएगा, B2B ये भी आउटवर्ड्स, ये भी आउट, तो दोनों क्या होंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ऐड होंगे। टेक दिस एज
इसकी भी पॉजिटिव आउटवर्ड्स पॉजिटिव हम लेंगे और ये भी क्या लेंगे पॉजिटिव। लेट अस टेक देम टू बी एज पॉजिटिव। देयरफॉर नेट बी क्या आएगा, देयरफॉर बेटा नेट बी क्या आएगा, देयरफॉर नेट बी एट पॉइंट पी क्या आएगा बेटा, वो बी आएगा B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। क्यों दोनों पॉजिटिव, बिकॉज बहुत सारा आउटवर्ड्स, ये भी आउटवर्ड्स और बेटा ये भी आउटवर्ड्स। यहां तो क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे म्यू नॉट बेटा I1 बेटा 2 पाई एक्स प्लस बेटा यहां लिखेंगे म्यू नॉट I2 2 पाई डी माइनस एक्स। हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ, ये B1 के बदले और बेटा ये कि हमने B2 के बदले। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, दोनों पॉजिटिव दोनों आउटवर्ड्स। तो देयरफॉर बेटा बी किसके बाहर आएगा, बी आएगा म्यू नॉट 2 पाई, बाहर करो बेटा अंदर क्या रहेगा I1 बाई एक्स प्लस I2 बाई डी माइनस एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और इसके साथ ही आज का लेक्चर हमको हमारा खत्म हुआ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।